Hey everyone, how are you all? In my previous video, we explored the basics of reproduction. As such, factors affecting reproduction, unique features and types of reproduction. इन सारे टॉपिक्स को हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कवर किया है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स which affect reproduction and their types. In this video, we will dive deeper and further into the fascinating world of reproduction. So friends, welcome once again in my YouTube channel, The Biology Guru. I am your host and dost, philosopher and guide, और मैं यहाँ पर आपको इस चैप्टर के सारे डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड मेंशन इन कमेंट सेक्शन कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए। मैं इस चैनल के थ्रू क्लास 11 एंड 12 के वीडियो अपलोड करता रहूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, काइंडली स्टे विथ मी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने पढ़ा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द बेसिक प्रोसेस बाय व्हिच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर यंग वंस। जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को जन्म देते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये डायग्राम उतनी क्लियर नहीं है, इमेज, सो सॉरी फॉर दैट। तो इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, so in the previous video we have covered there are 3 types of reproduction: asexual, vegetative propagation and sexual reproduction. But in today's video we will only cover different types of asexual reproduction. तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। And before starting the video, कितने तरह के होते हैं asexual reproduction? तो it is basically of following type. The first one is known as fission, followed by second one known as budding, then followed by fragmentation. Fragmentation के बाद जो अगला होता है that is known as regeneration, and the last one is known as sporulation. तो ये 5 टॉपिक्स हम लोग डिटेल में आज कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो दोस्तों, इस वीडियो में काइंडली मेरे साथ बने रहें। सो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं इन डिटेल। So first of all, let's again start with features of asexual reproduction process. ARP is called asexual reproduction process. तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था asexual reproduction is uniparental. Uniparental means there is only one parent in case of asexual reproduction. यहाँ पर मेल और फीमेल नहीं होता, एक ही पेरेंट होता है। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं पाई जाती है। दैट मीन्स कि गैमेट फॉर्मेशन रिमेन्स एब्सेंट। क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि मियोसिस, which is also known as reductional division, this meiosis will also remains absent. ये भी क्या होगा, meiosis भी आपकी absent होगी। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। Since gamete remains absent, hence there will be no syngamy or fertilization. Syngamy क्या होता है? Syngamy is fusion of male and female gamete. लेकिन चूंकि यहाँ पर gamete बनती ही नहीं है, that's why syngamy will also remain absent. Next one, the product of asexual reproduction is known as clone. Asexual reproduction में जो progeny बनती है, that progeny is known as clone, and clones are referred as morphological and genetically similar copy of the parents. जैसे माता पिता होते हैं, बिल्कुल exact replica होती है clone. साथ ही साथ asexual reproduction काफी फास्ट होता है as compared to sexual reproduction. तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट वन, asexual reproduction is also known as agamogenesis. Agamogenesis. तो इस वर्ड को हम स्प्लिट करके देख लेते हैं। दिस a means no, then gamo word stands for gamete, and then genesis word stands for origin or formation. That means since there is no gamete origin or formation,
hence it is known as agamogenesis. Moreover, asexual reproduction is also known as somatogenic reproduction. Somatogenic reproduction. Why somatogenic reproduction? Because only somatic or body cells are involved. Somatic or body cells are involved. तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है फ्रेंड्स. हम लोग फिर से कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं वंस अगेन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट होता है. गैमेट फॉर्मेशन रिमेन्स एब्सेंट. मियोसिस रिमेन्स एब्सेंट. सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन आल्सो रिमेन्स एब्सेंट. प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्लोन, विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स. Asexual reproduction is fast as compared to sexual. It is also known as agamogenesis. That means there is no formation of gamete, and also known as somatogenic reproduction since it only involved somatic or body cells. तो यहाँ तक दोस्तों आपको कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा. चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे. Let us discuss in detail what are the various types of asexual reproduction. Asexual reproduction के कितने टाइप्स होते हैं? तो in this video we will cover 5 major types. The first one is known as fission, followed by second one known as budding. तीसरी जो होती है third one, that is known as fragmentation. Fourth one is known as regeneration. हम लोग हर एक टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट वन इज नॉन एज sporulation. So if someone asks you what are the various types of asexual reproduction, so there are basically 5 major groups known as fission, budding, fragmentation, regeneration and sporulation. Now let's start the first one. अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में the very 5 types of asexual reproduction. The first one is known as fission. Fission वर्ड जो है ये फिजिक्स से लिया गया है. Fission means split. जब किसी चीज को दो भाग में तोड़ा जाता है तो इसे हम बोलते हैं fission. And fission means splitting into 2 or more than 2 halves. Now this fission could be of 2 types. The first one is known as binary fission. And the second one is known as multiple fission. तो आपकी fission जो होती है ये दो तरह की होती है. Binary fission, that means splitting into 2 equal halves, and multiple fission is splitting into more than 2 equal halves. जब आपके पेरेंटल सेल को 2 से ज्यादा इक्वल हाफ्स में ब्रेक किया जाता है तो उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं. तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं बेसिक से. बाइनरी फिजन. Binary fission. Binary fission means splitting of the parental cell, splitting of the parental cell into 2 equal halves. जब हम पेरेंटल सेल को 2 इक्वल हाफ में ब्रेक करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं. And again, this binary fission could be of many types. ये कई तरह के होते हैं. इसे हम देख लेते हैं. The first one is known as simple binary fission. Simple binary fission का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अमीबा. Then followed by transverse binary fission. Transverse binary fission. Transverse binary fission कहाँ पाई जाती है? It is commonly occur in diatoms as well as in बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के केस में भी आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है. हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि व्हाई वी कॉल इट सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक. थर्ड वन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका यूग्लिना. एंड अनदर एग्जांपल इज वॉटिसेला. And last one is known as oblique binary fission. Oblique binary fission. And example is Paratium.
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं once again about the binary fission. Binary fission means splitting of the parental cell into two equal halves. It could be of 4 different types. Simple binary fission, example is amoeba. Transverse binary fission, example is diatoms. Longitudinal binary fission, example is Euglena vorticella. And oblique binary fission, example is Serratium. यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका कोई प्लान नहीं होता है बाइनरी फिजन का, तो इसे हम बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन, बिकॉज यहाँ पर आपकी फिजन का कोई प्लान नहीं होता, ये कहीं से भी ब्रेक हो सकता है इनटू टू अनइक्वल साइज। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है? जब आपकी प्लेन ऑफ कटिंग इज लाइक दिस, जब प्लेन ऑफ डिवीजन आपका ऐसे पैरेलल होता है तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। जब प्लेन ऑफ डिवीजन आपका परपेंडिकुलर होता है लाइक दिस, देन इट इज नोन एज थर्ड वन लॉन्गिट्यूडनल एंड लास्ट वन इज ऑब्लिक। ऑब्लिक कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, और यहाँ पर आपका ना ऐसे कटेगा ना सीधा कटेगा, कैसे कटता है? तिरछा कटता है, लाइक इन दिस प्लेन। दिस वन इज नोन एज ऑब्लिक बाइनरी फिजन। यहाँ तक दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, आई होप। और एग्जाम्पल्स भी क्लियर होंगे, एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, आप उसको जरूर ध्यान रखें। सेकेंड वन इज नोन एज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही लगता है, मोर देन टू, मोर देन टू। When the parental cell splits into more than two daughter cell, then this is known as multiple fission. तो इसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन आपकी फेवरेबल होती है तब ये पाया जाता है कहां पर? इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ए मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ which basically causes malaria. And under unfavorable condition, multiple fission takes place in amoeba. तो याद रखना है, if the parental cell splits into more than two daughter cell, it is known as multiple fission. Under favorable condition, it takes place in plasmodium, and under unfavorable condition, it takes place in अमीबा। तो अमीबा में हम लोग देख लेते हैं मल्टीपल फिजन कैसे होता है। तो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमीबा का कोई फिक्स शेप या साइज नहीं होता, तो आप इसे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दिस इज द अमीबा, देन इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड इन सेंटर इट कंटेन्स न्यूक्लियस। नाउ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, द न्यूक्लियस विल डिवाइड and it will form multiple copy. ये क्या करते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड कर जाते हैं, and in each nucleus will develop a membrane around itself. तो यहाँ पर देख सकते हैं the single nucleus is splitted into more than two daughter cell, and once the condition become favorable, तो ये आपकी अमीबा ब्रेक हो जाएगी, and all the daughter cell it will come outside and they will develop into new amoeba. तो इस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, क्लासिकल एग्जांपल इज अमीबा। तो दोस्तों यहां पर आपकी फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ फिजन पूरा क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट मेथड इज बडिंग। बडिंग, तो दूसरे मेथड को हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, बड, बड इज बेसिकली दिस बडिंग वर्ड, इट कम्स फ्रॉम बड, एंड बड इज बेसिकली ए टाइप ऑफ आउटग्रोथ। आउटग्रोथ, जैसे कभी कभी हमें सर पे चोट लग जाती है, ए स्मॉल प्रोट्यूबरेंस कम्स आउटसाइड, दैट इज नॉन ए बड। ठीक है ना? तो यहां पर आप इसको डिवाइड, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं? Budding is a process by in which a small outgrowth of parent body develop into miniature individual. अब यहाँ पर ध्यान रखना है, in case of budding,
तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस कैसी होती है, अनइक्वल होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो एक सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा हो सकता है, दूसरे में कम हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। एंड वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मदर सेल retains their identity even after completion of the budding process। इसका मतलब क्या है, जब एक पेरेंट में आपका बर्ड बनता है और बर्ड जब डिटैच कर जाता है तो मदर सेल जो होती है वो वापस अपने स्टेटस पे लौट आती है, इसलिए वो अपने आइडेंटिटी को रिटेन करती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हम लोग इसको डायग्राम के हेल्प से देखेंगे भी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दिस बर्डिंग कैन टेक प्लेस इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बर्डिंग कैन टेक प्लेस इन बोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, क्लासिकल एग्जांपल इज ईस्ट, याद रखिएगा। एंड साथ में ये मल्टी सेलुलर में भी पाया जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है, क्लासिकल एग्जांपल इज हाइड्रा। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखना है। यूनिसेलुलर बडिंग, एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर बडिंग ईस्ट, एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर बडिंग हाइड्रा। तो यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज नोन एज इंडोजीनस बर्ड या फिर इंडोजीनस बर्डिंग। दैट मीन्स व्हेन द बर्ड रिमेन्स प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, जब ये किसी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में पाया जाता है तो इसे हम बोलते हैं इंडोजीनस। एंड एग्जाम्पल इज पॉरीफेरा, मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा, फॉर एग्जाम्पल साइकॉन, एनिमल किंगडम में हम इसे पढ़ेंगे। साथ ही साथ अनदर वन इज नोन एज एक्सोजीनस बर्डिंग, when the bird remains present outside the body, and classical example is hydra। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस एग्जाम्पल को एक डायग्राम के हेल्प से देख सकते हैं, देख लेते हैं। एंड डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी, क्योंकि जब डायग्राम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। एक हाइड्रा को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डायग्राम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, आप अगर सिंपल आउटलाइन फॉलो करेंगे तो यू कैन इजिली ड्रॉ। नाउ दिस इज द पेरेंटल हाइड्रा एंड सपोज दिस इज द बर्ड। यहाँ पर आपकी जो देख रहे हैं दिस इज द बर्ड, ये आपकी बर्ड हो गई। दिस इज द मदर हाइड्रा और द पेरेंटल हाइड्रा। ओवर हियर दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज टेंटेकल्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट tentacles. Now, in the next stage, you observe that the bird will keep dividing. बर्ड जो होगा वो अपने साइज को बढ़ाता जाता है। Now, as you can see, the bird is increasing in size. In the later stages, the bird will detach from the parental hydra and it will form a new daughter hydra. ये बर्ड आपकी डिटैच हो जाएगी और ये एक नए डॉटर हाइड्रा सेल में डेवलप करेगा। So now you got the concept कि how the budding division takes place and how hydra develops into new daughter cell. Now this is the daughter cell और द डॉटर हाइड्रा, और जो पेरेंटल हाइड्रा होगी ये अपने आइडेंटिटी को एज इट इज रिटेन करके रखता है। तो दोस्तों अब आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी कि हाउ दिस बर्डिंग टेक्स प्लेस। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक नोन एज फ्रैगमेंटेशन।
हमारी जो अगली टॉपिक है दैट इज फ्रैगमेंटेशन. नाउ एज द नेम सजेस्ट, when the formation of organism takes place from fragments or pieces, then it is known as fragmentation. तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं. तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं. पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स. ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट. जो पेरेंट आपका बॉडी होता है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में, पीसेस में ब्रेक कर जाता है. एंड देन each fragment develops into new organism. बहुत ही सिंपल होता है. जब भी हम कोई ऑर्गेनिज्म लें, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ स्पाइरोगाइरा. स्पाइरोगाइला इज ए यूनिसेलुलर एल्गा और इसमें आपकी रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है इन दिस फैशन. यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट. नाउ ब्रेक इट इनटू फ्रैगमेंट्स. छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में आपसे ब्रेक कर दें. नाउ ईच ऑफ दिस फ्रैगमेंट्स विल डेवलप इनटू न्यू स्पाइरोगाइरा. आप देखेंगे कि ये हर एक फ्रैगमेंट से आपकी न्यू स्पाइरोगाइरा आपकी डेवलप हो गई है. Now this method is known as fragmentation. Fragmentation, जहां पर कि आपकी छोटी छोटी पीसेस जो होगी वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है. Now let's talk about various examples of regeneration. क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले let's take example of animals. कुछ एनिमल्स होते हैं which have unique ability of fragmentation. For example Hydra, बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है इसका. एंड सेकेंड वन इज स्टार फिश. देन इन केस ऑफ फंगी इट इज क्वाइट एविडेंट. एल्गी में भी ये मेथड काफी पाई जाती है. तो ये सब आपको याद रखना है. एल्गी में भी क्लासिकल एग्जांपल आपको मैं बता चुका हूं. स्पाइरोगाइरा हो गया. नाउ यूलोथ्रिक्स इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एल्गा. साथ ही साथ ब्रायोफाइट्स में प्रोटोनीमा पाया जाता है. ब्रायोफाइटा में प्रोटोनीमा पाया जाता है. नाउ दिस प्रोटोनीमा इज ए एसेक्सुअल स्ट्रक्चर विच डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. तो यहां तक दोस्तों आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. व्हेन द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन. एनिमल्स के केस में हाइड्रा में, स्टारफिश में पाया जाता है. इट इज क्वाइट कॉमन इन फंगी, एल्गी, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स. एंड ब्रायोफाइटा में प्रोटोनीमा सेल पाई जाती है विच शोज द फीचर्स ऑफ रीजनरेशन. अगले प्रोसेस पे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज नॉन एज रीजेनरेशन. नाउ एज द नेम सजेस्ट, री मीन्स क्या होता है? अगेन. एंड जनरेशन मीन्स फॉर्मेशन. तो बहुत ही सिंपल है. when the formation of new organism takes place from any part of the body, or when the organism can develop its lost part only, it is known as regeneration. तो इसके डिफिनेशन को पहले समझने की जरूरत है. It is the process of replacing or restoring damaged or missing cells, tissues, organs. Missing cells or tissues or organs, or it could be something else. For example, organ system. So regeneration is the ability to replace or restore the damaged part. तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, regeneration could be of two types. इसके दो types होते हैं. Regeneration is of two types. The first one is known as epimorphosis, and second one is known as morphallaxis.
morphallaxis. Now, what is the difference? Difference is renew lost part only. एपीमॉर्फोसिस क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म केवल अपने लॉस्ट पार्ट को फिर से ग्रो करता है, दैट इज नोन एज एपीमॉर्फोसिस. फॉर एग्जांपल, टेल ऑफ लिजर्ड. बट when a fragment gives rise to entire organism, then it is known as morphallaxis. That means कि एक लिजर्ड में वो अपने टेल को वापस ग्रो कर लेते हैं. दैट कुड बी एग्जांपल ऑफ एपीमॉर्फोसिस. एंड प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया अपने हर एक बॉडी के सेल से, हर एक बॉडी के फ्रेगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है. हेंस प्लेनेरिया इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रीजेनरेशन. तो यहाँ तक दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज sporulation. Now, as the name suggests, sporulation means spore formation. That means different organism gives rise to specialized spore, and those spore later on gives rise to the complete organism. Now, it is of quite common occurrence in algae and fungi. इन दोनों ग्रुप्स में आपका स्पोरुलेशन काफी कॉमनली पाया जाता है. अब यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो स्पोर्स होते हैं, दिस स्पोर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज नोन एज मियोस्पोर. वैसे स्पोर जो कि किस डिवीजन से बनते हैं? जो कि मियोसिस डिवीजन से बनते हैं, उसे हम बोलते हैं मियोस्पोर. फॉर एग्जाम्पल, एस्कोस्पोर्स. एस्कोस्पोर्स जो होते हैं, that is a type of meiospore. And the next one is known as mitospore. Those spores which are formed by mitosis. जो स्पोर माइटोसिस डिवीजन से बनते हैं, उसे हम बोलते हैं माइटोस्पोर. फॉर एग्जाम्पल, जूस्पोर, कॉनिडिया एक्सेट्रा. ये कुछ एग्जांपल्स आपके हो गए माइटोस्पोर के. चलिए, अब कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज जूस्पोर. तो ये डायग्रामेटिकली बहुत ही सिंपल इसकी डायग्राम होती है. इट विल अपीयर समथिंग लाइक दिस. ये थोड़ा सा आपका इस ढंग का दिखाई पड़ता है. Now this is known as zoospore. You can easily observe कि ये कैसे होते हैं. ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं. बाईफ्लैजिलेटेड क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला आपको दिख रहा होगा, दो होते हैं. साथ ही साथ आपका किसमें पाए जाते हैं? एल्गी में काफी कॉमन होते हैं. जो स्पोर्स जो होते हैं वो एल्गी में काफी पाए जाते हैं. साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? ये बनते हैं आपके किडनी शेप के. इनका शेप कैसा होता है? किडनी शेप जैसा होता है. चलिए चलते हैं दूसरे स्पोर की तरफ. ये हो गया जूस्पोर. अनदर एग्जांपल इज कॉनिडिया. कॉनिडिया को भी हम लोग देख लेते हैं. इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है. ये इसका बेस हो जाएगा. देन फ्रॉम बेस the conidial hyphae they will develop. ये हैं आपके कॉनिडियोफोर्स. ये फर्दर और ब्रांचिंग करते हैं इस ढंग से. यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉनिडिया पर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे होते हैं? दीज आर एक्सोजिनस इन ऑरिजिन. क्योंकि ये हाइफे के ऊपर बनते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? एक्सोजिनस. क्योंकि इनकी फॉर्मेशन आउटसाइड होती है.
साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल, यहाँ पर आपकी फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनका और नेचर कैसा होता है, एक्सोजिनस, बाहर में बनते हैं, फ्लैजिला आपकी अब्सेंट होती है। साथ ही साथ ये जिस हाइफे पे बनते हैं उस हाइफे को हम बोलते हैं कॉनिडियोफोर, कॉनिडियोफोर। तो यहां तक आपको याद रखना है दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट one more example, that is sporangiospores. This is also very important. Sporangiospores. ये डायग्राम देख लीजिए कैसे दिखते हैं। They will appear somehow like, somewhat like this. Now this is a diagram of sporangiospoor. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। अब यहाँ भी दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है कि स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इनसाइड द स्पोरेंजियम। ये जो पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर नोन एज स्पोरेंजियम। नाउ सिंस द स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द स्पोरेंजियम, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, दे कैन बी रेफर्ड एज इंडोजिनस इन ऑरिजिन, मतलब कि ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। साथ ही साथ आपकी फ्लैजिला अब्सेंट दिख रही है, इसलिए बाय नेचर कैसे होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉन मोटाइल। तो ये हमारी आज की आखिरी टॉपिक थी फ्रेंड्स। तो जितना भी कुछ हो सकता था अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने उन सबको कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच आज के वीडियो में पूरे समय मेरे साथ बने रहने के लिए। हैव ए लवली डे एंड वंस अगेन इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, like the like button. Thank you so much.